یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت چھلائی۔ شاہین کا تجسس، عقاب کی نگاہ، چیتے کی لپک جھپک رکھنے والے یہ جوان پاک فوج کے حوصلہ مند اور جرری سپوت تھے۔ پرچم وطن کے پاسبان، جرت و بہادری کے نشان اور سرزمین وطن کے نگہبان، ہر پل مستعد، ہر آن آمادہ و تیار۔ قوم کے ان جرری سپوتوں کا تعلق ایس ایس جی سے ہے، اسپیشل سروس گروپ۔ عرف عام میں کمانڈوز کہلانے والے پرعزم جوانوں کا اسپیشل سروس گروپ، وہ نام جو عزت و افتخار کی علامت ہے، وہ نام جس سے عزم و ہمت کی روشن داستانیں وابستہ ہیں، وہ نام جس سے تعلق ہر پاسبان وطن کے ماتھے کا جھومر ہے، اسپیشل سروس گروپ، جس سے تعلق رکھنے والے حوصلہ مند کمانڈوز کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ چیلنج ہے۔ حرکت، عمل، آمادگی، مستعدی اور بڑی سے بڑی مشکل پر غلبہ پانے کی امنگ۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ بے داغ جوانیوں والے ان فرزندان پاکستان کی ہر ضرب کاری ہے جو اہل وطن کے سینوں میں دل بن کر دھڑکتے ہیں۔ ایس ایس جی یا اسپیشل سروس گروپ کی پرعزم تاریخ کا سفر قیام پاکستان کے بعد 1950 میں شروع ہوا، جب کوئٹہ میں ایک کلوز کوارٹر بیٹل سکول قائم کیا گیا۔ ایک برطانوی فوجی افسر کرنل گرانٹ ٹیلر اسکول کے کمانڈر تعینات کیے گئے۔ ایک ہی سال بعد یہ سکول کوئٹہ سے اٹک قلعہ منتقل ہو گیا اور کرنل کاہون اس کے کمانڈر مقرر کیے گئے۔ کلوز کوارٹر بیٹل سکول میں مختلف ہتھیاروں کے استعمال، جوڈو، میپ ریڈنگ، نیویگیشن اور ایکسپلوسیو کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ایس ایس جی کے اس سفر کا آغاز تھا جسے آگے چل کر کئی منزلیں سر کرنا تھیں اور جس کی کامرانیاں افواج پاکستان کی تاریخ میں ایک اور درخشاں باب کا اضافہ کرنے والی تھیں۔ بعض وجوہات کی بنا پر 1952 میں کلوز کوارٹر بیٹل سکول بند کر دیا گیا اور کمانڈوز کی تربیت کا کام براہ راست جی ایچ کیو نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کا نیا نام 312 گیرزن کمپنی رکھا گیا۔ کمپنی کی تربیت کی ذمہ داری لیفٹیننٹ کرنل ابوبکر عثمان مٹھا کے سپرد کی گئی۔ اس گمنام سی کمپنی کو اس وقت شہرت ملی جب اس نے والکن ایکسرسائز میں اپنی عسکری اور پیشہ ورانہ مہارت کا لوہا منوایا۔ 1954 میں ہینڈی کیپ ایکسرسائز کے دوران 312 گیرزن کمپنی کی شاندار کارکردگی پر اس وقت کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے کمپنی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سپاہیانہ عزم رکھنے والے جواں ہمت غازیوں نے اپنی کمپنی کو اعزاز و افتخار کی درخشندہ علامت بنا دیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علامت کی درخشندگی اور بڑھتی چلی گئی۔
1954 में ही 312 गैरिसन कंपनी का नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप रख दिया गया और अगले साल 1955 में पाकिस्तान की सबसे जूनियर इन्फेंट्री रेजिमेंट 17 बलोच और 312 गैरिसन कंपनी यानी एसएसजी को जम करके 19 बलोच रेजिमेंट का नाम दिया गया और यही एसएसजी का पहला असासा था। कर्नल अबू बकर उस्मान मिठा और अमेरिकन कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल बंटे की जेर निगरानी एसएसजी के पहले तारीख साज दस्ते की तरबियत का आगाज हुआ और 1956 में चिराट को एसएसजी का हेडक्वार्टर बनाया गया। आज भी इन उकाबों का नशेमन चिराट में है, जहां तवाना जिस्मों और रोशन जहनों वाले जवान कमांडोज बनने की तरबियत हासिल करते हैं और फिर आजमाइश की हर घड़ी में अपने जानों से बेनियाज होकर सरधड़ की बाजी लगा देते हैं। एसएसजी के 16 सिफ्त कमांडोज अफवाज पाकिस्तान का हुस्न हैं, सरजमीने वतन का बांकपन है, नाकाबिल तस्कीर जज्बों की जिंदा और तवाना अलामत हैं। उन्हें देखकर रगों में लहू जोश मारता है, बलबले ताजा और उमंगे जवान होती हैं। एसएसजी में शमूलियत एक एहसास है, एक इफ्तिखार है। पाक फौज का हर शेर दिल सपूत ये एहसास हासिल करने की आरज़ू रखता है। एसएसजी में शमूलियत के लिए जवानों के चुनाव की गर्ज से एक खुसूसी सिलेक्शन टीम मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स और यूनिटों का दौरा करती है और जवानों और अफसरों को स्पेशल सर्विस ग्रुप से मुताल्लिक तमाम जरूरी मालूमात वहां पहुंचाती है। उन्हें बताया जाता है कि इश्क का ये सफर कितना कठिन है, कितना सब्र आजमा और कितना तवील है, जिसमें गहरी खाइयां, दुश्वार गुजार घाटियां, बुलंदोबाला पहाड़, पुरखतर जंगल, बिफरे हुए दरिया, बर्फजार मौसम की शिद्दत और लम्हा लम्हा मौत की आंखों में आंखें डालकर देखना, जिसके लिए सरफरोशी और जानिसारी का जज्बा भी चाहिए और तंदुरुस्त और तवाना जिस्म भी, जो खतरों से पंजा आजमाई का हौसला रखता हो। इब्तदाई टेस्ट और तिब्बी मयार पर पूरा उतरने वाले मुंतखब जवानों और अफसरों को सबसे पहले पैरा ट्रेनिंग स्कूल पेशावर रिपोर्ट करना होती है, जहां सबसे पहले उन्हें 34 फुट बुलंद टावर टेस्ट के मरहले से गुजरना होता है। इस मरहले पर नाकाम रहने वालों का सफर यहीं खत्म हो जाता है। छाताबरदारी की तरबियत के कामयाब इम्तिहान की तकमील के बाद कमांडोज अपने असल नशेमन चिराट का रुख करते हैं, गाड़ी या किसी सवारी पर नहीं। पापे आदा पेशावर से चिराट अलग, पुरज़्म जवानों की तरह, हौसलामंद सख्त जानों की तरह, और ये चिराट है कमांडोज का घर, कमांडोज की तरबियत गाह। यहाँ की जिंदगी और है, मामूलात और हैं, मसरूफियात और हैं, मुस्तादी, तेजी, चुस्ती, होशियारी, सख्त जानी, सख्त कोशी, ये चिराट के जिंदगी के बुनियादी असूल और ज़ाबिते हैं। ज़ाबितों की इसी भट्टी से गुजरकर एसएसजी के कमांडोज सफ शिकन मुजाहिद, जाबाज गाजी और बाहिम्मत मर्दाने कार बनते हैं। चिराट में ट्रेनिंग की इब्तिदा एक अजीबो गरीब हुक्म से होती है, आम रफ्तार से मत चलो, दौड़ते हुए चलो। कोई भी काम हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त दौड़ते हुए जाओ। यह हुक्म तरबियत के आगाज से इख्तिताम तक नाफिज रहता है। जुर्म की तरह सजा भी अनोखी है। चिराट से 7 किलोमीटर दूर छपरी गांव तक 30 पौंड वजनी पिट्ठू लगाकर पैदल जाना और पैदल आना। तरबियत का निसाब कई महारतों पर मुश्तमिल है। जुडो, कराटे, ये वो फन है जो मद्दे मुकाबिल की ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का हुनर सिखाता है। दस्त बदस्त लड़ाई में पहलकारी और इस फन पर उबूर एक अच्छे कमांडो के लिए लाजमी है। अच्छी निशानाबाजी हर फौजी की तरबियत का लाजिमा है, लेकिन कमांडोज के लिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है। एसएसजी की तरबियती निसाब में स्पेशल वेपन्स यानी खुसूसी हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। मौजूदा दौर में बारूद का इस्तेमाल खुसूसी अहमियत का हामिल है। एसएसजी के जवानों को बारूद के इस्तेमाल की बुनियादी तरबियत दी जाती है। फिर अमूमी कोर्स की तकमील के बाद स्पेशलाइज्ड बारूद के इस्तेमाल की तरबियत दी जाती है। बारूद के इस्तेमाल पर दस्तरस एक कमांडो का जेवर है।
खराब मौसम और अंधेरा एक अच्छे कमांडो का दोस्त होते हैं। इन हालात में वो दूसरों की नजर में आए बगैर अपने मिशन की तकमील करता है, लेकिन तारीकी और नासाजगार मौसम में अपने तयशुदा हदफ तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसके लिए कमांडोज को नेविगेशन की खुसूसी तरबियत दी जाती है। जमीन को इस्तेमाल करते हुए जंगी चालों पर अबूर हासिल करना एक कमांडो की तरबियत का अहम खासा है, ताकि वो बेखबरी के आलम में दुश्मन को जा दबोचे और इस पर कारी ज़रब लगाए। इसे कमांडोज की इस्तिलाह में फील्ड क्राफ्ट कहा जाता है। कमांडो के लिए मुश्किल तरीन हालात में जिंदा रहना और अपना मिशन पूरा करना तरबियत का बुनियादी जौहर है। उन्हें ऐसे हालात पेश आ सकते हैं कि कोई तिब्बी इमदाद मयसर ना हो, खाने को खुराक और पीने को पानी ना हो। इन हालात में कमांडो के लिए जिंदगी बरकरार रखना एक कठिन काम होता है। ऐसे हालात में कई दिनों तक जिंदा रहने के लिए कमांडोज को सर्वाइवल रेंज पर खुसूसी तरबियत दी जाती है। टेक्टिक्स की ट्रेनिंग का मकसद छापा, घात, गश्त और टारगेट पर कारी ज़रब लगाने की सलाहियत पैदा करना है। हदफ मुतहर्रिक हो या साकिन, एक अच्छे कमांडो की ज़रब से नहीं बच सकता। कमांडोज की राह में कोई दरिया, कोई सहरा, कोई पहाड़ हाइल नहीं हो सकता। चराट में एसएसजी की ट्रेनिंग के दौरान माउंटेन क्राफ्ट पर खास तवज्जो दी जाती है, जिसका मकसद हर किस्म की पहाड़ी रुकावटों, क्रेविस क्रॉसिंग और रैपलिंग में महारत फराहम करना है। छाताबरदारी की ट्रेनिंग कमांडोज की तरबियत की सबसे अहम कड़ी है, जो एसएसजी को बाकी मुसल्लह अफवाज से मुमताज करती है। जेर तरबियत जवानों को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में छाताबरदारी में 1 माह की बुनियादी तरबियत दी जाती है, जिसमें उनको अपने मुकम्मल साजो सामान के साथ जहाज से छलांग लगाकर दुश्मन के अक़ब में जारहाना कार्रवाइयों के बारे में सिखाया जाता है। बाद में मुंतखब जांबाजों को फ्री फॉल, जंप मास्टर और पाथफाइंडर जैसे एडवांस्ड कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। एसएसजी के लिए यह बात बड़ी बाइसे फख्र और इत्मीनान है कि यहां अपने जांबाजों की ट्रेनिंग के अलावा बहुत सारे ममालिक के स्टूडेंट्स को भी स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ममालिक में सऊदी अरब, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहरीन, मालदीव, फलस्तीन, तुर्कमानिस्तान, मिस्र, जापान और इराक शामिल हैं, जबकि अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, उर्दन और चीन के साथ एसएसजी की मुश्तरका सालाना मशकें भी मुनक्किद होती रहती हैं। इस हमागीर और हमा पहलू ट्रेनिंग के बाद ही एक हकीकी और पक्का कमांडो तैयार होता है। ये सख्त तरबियती मराहल कमांडोज को आहन फौलाद के सांचे में ढाल देते हैं, लेकिन एक ऐसा आहन फौलाद जिसके सीने में दिल भी धड़कता है, एक ऐसा आहन फौलाद जो जिंदगी की तमाम रौनकों, रानाइयों, तफरीहात और तकरीबात में भी एक आम इंसान ही की तरह उसी जोश जज्बे से शमूलियत करता है। प्यार दी फलापी साड़ी हो जाए ना कापी, इस डर तो मैनू